العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الأجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله وابن زاد بن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زاد وآل مروان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد. معزز اور محترم سامعین کرام، بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام، بتصدق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہم سلسلہ کلام کی تیسری تقریر میں داخل ہو رہے ہیں. مسلسل اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں جو عنوان منتخب ہوا کہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا فائدہ کیا ہے. کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے مربوط کچھ معروضات پیش کیے تھے. آج اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے قرآن جیسی مقدس اور پاک و پاکیزہ کتاب میں یہ اعلان کر دیا کہ چاہے مرد ہو یا عورت، جس نے بھی نیک کام کیے ہیں، عمل صالح انجام دیا ہے اور اس کا یہ عمل ایمان کے ساتھ رہا ہے، تو پھر ایسے افراد کے لیے یہ طے ہے کہ ان کو ایک خوبصورت زندگی اور بہترین ماحول عطا کر دیں گے. اور صرف بہترین ماحول نہیں بلکہ وہ جو کچھ کارنامے انجام دیے ہیں ان کے ہر عمل کے بدلے میں ان کے عمل سے بہتر جزا بھی عطا کر دیں گے. یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے اور خداوند عالم اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے نہ ذریعے کا محتاج ہے نہ وسیلے کا محتاج ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ غنی الذات ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لہذا ہر عمل کی جزا بھی دینے پر قادر ہے. عزیزان گرامی، میں نے کل دو فائدے، پہلی مجلس میں ایک فائدہ اور دوسری مجلس میں بھی ایک فائدہ بیان کیا تھا. آج ایک اور فائدے کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک ایسا فائدہ ہے کہ جس پر ہم لوگوں کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. معصومین علیہ السلام کے اقوال میں اور ان کے
बेहतरीन फरमान की रोशनी और उनके ज़ेर असर कलाम में हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं कि हर वो इंसान की जिसको अल्लाह ने नेक काम करने की दावत दी है और फस्तबिकू इलल खैरात के जरिए से लोगों को नेकियों की तरफ बढ़ने के लिए अल्लाह ने दावत दी है और लोगों को बुलाया है कि नेकियों के लिए सबकत करो और तेजी के साथ तुम हमारी बारगाह में आ जाओ। अल्लाह ने मोमिनीन को यह मुतवज्जे करार दिया कि देखो तुम एक अमल अंजाम दोगे, हम तुम्हारे अमल की जजा तुम्हारे अमल से बेहतर करार देंगे। शर्त है कि तुम्हारा एक एक अमल ईमान के साथ होना चाहिए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान गिरामी, अमल सालेह की कैद इस आय मुबारका में लगाई गई कि नेक काम किया जाए। छठे इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में रावी ने सवाल किया, मौला अमल सालेह की तारीफ क्या है? किस अमल को अमल सालेह कहा जाएगा? वो अमल जो खुदावंद आलम की बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल कर ले, वो अमल जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, वो अमल जो अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाब हो जाए, वो अमल जो खुदावंद आलम की बारगाह में जजा के काबिल बन जाए, वो अमल क्या है? जिसको हम ये कहें कि ये इंदल्लाह अमल है, जिसको हम ये कहें कि खालिस परवरदिगार आलम के लिए अमल है। इमाम अलैहिस्सलाम ने दो जुमले में बात कह के तमाम कर दी और खूबसूरत जुमला कहा, और ये हमें याद कर लेना चाहिए, इसलिए कि इमाम ने यह भी फरमाया है कि देखो रिया जो है शिर्क की अलामत है, दिखावा शिर्क की अलामत है, और ये चूटी के चाल से भी खफीफ चाल चलता है। लिहाजा कभी कभी हम मुतवज्जे भी नहीं हो पाते, हम अपने अमल को रियाकारी की बुनियाद पर तबाह कर देते हैं, दिखावे की बुनियाद पर उसको खुलूस को खत्म कर देते हैं। यानी बेहतरीन अमल भी हो, रियाकारी की बिना पर उसके हुस्न का गला घोंट देते हैं। लिहाजा हमें मुतवज्जे होना चाहिए कि जिस बारगाह में हम अमल अंजाम दे रहे हैं, जिस जात के लिए अमल अंजाम दे रहे हैं, वही परवरदिगार आलम है जजा देने वाला। तो खुदावंद आलम ने रियाकारों को मुतवज्जे करके फरमाया कि जब मैदान महशर में बहुत से ऐसे भी आएंगे कि जो अपने आमाल पर इतराते हुए होंगे कि हमारे पास तो ढेरों सजदे हैं, हमारे पास ढेरों रुकू हैं, हम तो सुबह शाम मस्जिदों में खड़े रहते थे और बेहतरीन से बेहतरीन इंफाक हमने किया है और बेहतरीन से बेहतरीन अमल हमने अंजाम दिया है। और जब ये सोच के मैदान महशर में आएंगे तो उनके आमाल मानिंदे शराब होंगे। मानिंदे शराब का मतलब क्या है? का मानिंदे शराब का मतलब यह है कि जैसे आप धूप में जाएं और मैदान में पहुंचे, रेतीला मैदान हो या चटियल मैदान हो, और दूर से प्यासा इंसान जब देखता है तो चमकता हुआ पानी नजर आता है और तेजी के साथ ये प्यासा उस पानी को की तरफ बढ़ जाता है, जबकि वो दरअसल आपकी आंखों का धोखा है, पानी नहीं होता। इसको शराब कहा जाता है। इसी बुनियाद पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने अमल की खुशनुदी के बना पर अल्लाह की बारगाह में मुतमईन जाएंगे और ये कहेंगे कि परवरदिगार मैंने बहुत से अमाल किए हैं, हर अमल की जजा अगर मिलेगी तो ढेर सारी जजा हो जाएगी। लिहाजा उनका अमल मानिंदे शराब होगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया में उन्होंने अमल तो किया है लेकिन उसमें दिखावा शामिल कर दिया है, रियाकारी शामिल कर दिया है। तो उस वक्त परवरदिगार आलम ऐसे अमल को अंजाम देने वालों के लिए कहेगा, जाओ जिसके लिए तुमने ये काम किया है उसी से जजा मांग लो। तवज्जो कीजिएगा, जाओ जिसके लिए कारनामे तुमने किए हैं तो उसी के लिए उसी से जजा मांगो। अगर तुमने हमसे हमारे लिए काम अंजाम दिया है तो तुम्हें जरूरी है कि हमसे मुतालबा करो। लिहाजा अल्लाह ने कहा तुम्हारा काम है अमल करना, उजागर करने का काम हमारा है। तवज्जो कीजिएगा। तो छठे इमाम से पूछा गया, मौला खालिस अमल क्या है? इंदल्लाह अमल तो जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, उस अमल को खालिस अमल कब कहा जाएगा? इमाम ने फरमाया कि देखो जिस कारनामे के बाद, जिस अमल के बाद, जिस नेकी के बाद, जिस भी कारनामे के बाद तुमको किसी भी किस्म की उजरत का मुतालबा ना हो और किसी भी किस्म की उजरत की उम्मीद ना हो, लोगों से उस अमल को खालिस अमल कहा जाता है। यानी सिर्फ अल्लाह के लिए काम अंजाम दिया जाए, सिर्फ परवरदिगार आलम के लिए काम किया जाए तो उस अमल को खालिस अमल कहा जाता है।
सजदा हो तो परवरदिगार आलम के लिए, नमाज हो तो परवरदिगार आलम के लिए, इंफाक किया जाए तो परवरदिगार आलम के लिए। इसीलिए अल्लाह ने कहा एलानिया सदका देने से बेहतर है कि तुम छुपा करके सजदा दो, तुम सदका दो, इसलिए कि जिसके लिए तुम सदका दे रहे हो वो बेहतरीन कादिर है उससे बेहतर जजा देने के ऊपर। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आज का सबक ये है, आज का दर्स ये है कि हम कोई भी काम करें, जो भी काम करें, जो भी अमल अंजाम दे, हर छोटी बड़ी नेकी का तस्करा सिर्फ परवरदिगार आलम की बारगाह में हो, किसी और के सामने किसी नेकी को उजागर करने की जरूरत नहीं है। मैं एक रवायत के जरिए से बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप महसूस करें कि इंसान को अमल की दावत दी गई, इंसान को नेकी की तरफ दावत दी गई है, और हर छोटी बड़ी नेकी अल्लाह की बारगाह में महफूज हो रही है, और हर नेकी के बदले में खुदावंद आलम ने मोमिनीन से यह वादा किया है उनके ईमान की बिना पर कि तुम्हारे अमल से बेहतर जजा हम अता करेंगे। इससे कम फजल क्या हो सकता है कि हमारी टूटी फूटी नमाजों का, हमारी टूटी फूटी दुआओं का, हमारे टूटे फूटे लहजों को अल्लाह कबूल करता है, और सिर्फ कबूल नहीं करता बल्कि उसके बदले में जजाएं अता करता है। ये खुदावंद आलम के लुत्फ व करम की मिसाल है। अपने नबी से परवरदिगार आलम ने कहा, ऐ मेरे नबी जाओ अपने महल्ले को, अपने करिए को, अपने उम्मतियों को छोड़ो। तवज्जो चाहते इस रवायत पर, अपने महल्ले और करिए को छोड़ो और जाओ सहरा में जाओ, और 3 चीजें तुम्हें अंजाम देनी है। पहली चीज जो तुम्हें नजर आए सबसे पहले उसको तुम दफन कर देना, दूसरी चीज जो आए उसको तुम खा लेना, और तीसरी चीज जो नजर आए तो उससे राह फरार अख्तियार करना, दूर हट जाना। अल्लाह का नबी चला, तवज्जो चाहता हूं, अपने उम्मतियों के घरों से बाहर आया। जब सहरा में पहुंचे तो इस नबी ने एक सोने के तश्त को देखा, एक सोने की तश्तरी को देखा, एक सोने के बर्तन को देखा। हुक्म परवरदिगार ये है कि इस सोने की तश्तरी को, इस सोने के बर्तन को दफन कर दो, जो सबसे पहली चीज नजर आए उसे दफन करना है। अल्लाह के नबी ने फौरन उस सोने के बर्तन को मिट्टी हटाया और दफन कर दिया। जब मिट्टी के अंदर ये सोना चला गया तो जैसे ही अल्लाह का नबी दामन झाड़ के खड़ा हुआ तो फौरन ही वो सोने की तश्तरी, वो सोने का बर्तन ऊपर आ गया। दोबारा दफन करने का हुक्म नहीं है, अल्लाह का नबी आगे बढ़ा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नबी ने दोबारा दफन नहीं किया। अजीजान गिरामी, अल्लाह का नबी कितना फरमाबरदार है कि जितना अल्लाह ने कहा उतना ही काम अंजाम दिया, जज्बात से काम नहीं लिया। तवज्जो चाहता हूं, जज्बात से काम नहीं लिया। लिहाजा परवरदिगार आलम ने जो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का जवाब रखा है, जिन चीजों को हुक्म दिया है उनको हाथ लगाया जाए, जिन चीजों को रोक दिया है उनसे परे रहा जाए। अल्लाह का नबी आगे बढ़ा, तवज्जो चाहता हूं। अब दूसरी चीज क्या है? हुक्म परवरदिगार है कि जो चीज तुम्हें नजर आए उसे खा लेना। अब जो अल्लाह का नबी मुतवज्जे हुआ तो दूर से एक पहाड़, वसी और इस पहाड़ देखा, कैसे खा जाए? अल्लाह के नबी ने कहा परवरदिगार ये तो पहाड़ है। कहा ठहरो, एतराज न करो और सब्र करो, तहम्मुल करो, करीब जाओ। जैसे जैसे करीब होगे और जैसे जैसे सब्र करोगे, तहम्मुल करोगे तो ये चीज छोटी हो जाएगी। अल्लाह का नबी आगे बढ़ता रहा, बढ़ते बढ़ते इतना करीब हो गया कि एक मरतबा वो छोटे से फल की मानिंद हुआ और अल्लाह के नबी के हाथों पर आ गया, दस्ते नबी पर आया। हुक्म परवरदिगार क्या है? इसे खा जाइए। अल्लाह के नबी ने उसको नोश फरमा लिया। बेहतरीन जायका, अब तक अल्लाह के नबी ने ऐसे जायकेदार चीज को नहीं चखा था। शुक्र परवरदिगार किया, आगे बढ़ गए। अब जो आगे बढ़े, अब हुक्म क्या है? तीसरी चीज से राह फरार अख्तियार करना है, दूर हट जाना है, दूर चले जाना है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का नबी आगे बढ़ा, क्या देखा? एक बदबूदार जनाजा पड़ा हुआ है और जनाजे को देखा, दूर चले गए। बहुत दूर जाने के बाद खुदावंद आलम की बारगाह में अल्लाह के नबी ने सजदे में सर रखा और आवाज दी, परवरदिगार ये 3 काम तुमने मुझसे करवाए। तवज्जो,
یہ 3 کام تو نے مجھ سے کروائے. تو حکیم ہے, تو علیم ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو لطیف ہے, تو قادر مطلق ہے, تو غنی الذات ہے. تو بغیر کسی مقصد کے جب کائنات کو خلق نہیں کرتا تو بغیر کسی مقصد سے اپنے نبی سے کوئی کارنامہ کیسے کروائے گا؟ ان تینوں باتوں میں سبق کیا ہے؟ ان تینوں باتوں میں نصیحت کیا ہے؟ ان تینوں کاموں میں درس کیا ہے؟ اب پروردگار عالم نے کہا میرے نبی یقیناً میں نے آج تک کوئی کارنامہ عبث نہیں کروایا ہے. جاؤ اپنی امت کو یہ 3 پیغام دے دو. پہلا پیغام جو میں نے تم سے کہا کہ جو چیز نظر آئے اس کو دفن کر دینا, وہ تمہارے اعمال ہیں. توجہ چاہتا ہوں, وہ تمہارے اعمال ہیں. جیسے تم نے اس سونے کے برتن کو بغیر کسی تعامل کے دفن کر دیا اور ہم نے دوبارہ اس کو اچھال دیا, باہر نکال دیا, اسی انداز میں تم اپنے اعمال کو کرتے چلے جاؤ, نیکیاں کرتے چلے جاؤ. تمہارا کام ہے نیکیوں کو کرنا اور تمہارا کام ہے نیکیوں کے بعد اس پر پردہ ڈالنا. تو جیسے تم نے اس پر مٹی ڈال کے پردہ ڈالا اور اس کو ابھار ہم نے دیا, تو نیکی تم کرو گے, پردہ تم ڈالو گے, ابھار کو ہم لے کر کے آئیں گے, اس کو لوگوں کے سامنے ہم اجاگر کریں گے. لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نیکیاں کرو, تمہارے لیے ضروری ہے کہ نیک اعمال کرو. جیسے تم نے اس کو چھپایا ہے اس کو ہم نے ظاہر کیا ہے, تو یہ ظاہر کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. بس آج سے مربوط جملہ کہنا چاہتا ہوں, لہذا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم شہرت کے لیے کچھ بھی کرتے رہیں, لوگوں کے درمیان تشہیر کے لیے اپنے عمل کو ظاہر بظاہر کرتے رہیں. نہیں, یہ پروردگار عالم کا کام ہے. اس لیے کہ اگر ہم اپنے عمل کو لوگوں تک بیان کریں گے تو کتنے لوگوں کو بیان کریں گے؟ 2 کو, 4 کو, 10 کو, 100 کو. جتنے ہمارے تعلقات ہوں گے اتنے ہی کو, تو جتنی ہماری آئی ڈی میں ایڈ ہوں گے اتنے ہی تک ہماری نیکی پہنچے گی. اگر اس کے ماورا ہم کو پہنچانا ہے تو ہمارے بس میں نہیں ہے, ہماری قدرت میں نہیں ہے, ہماری توانائی میں نہیں ہے. خدا بند عالم قادر مطلق ہے, وہ لامتناہی ذات ہے, اس کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ جو اپنی نیکی کو لوگوں کے سامنے اپنے نیکوکار کے کارناموں کو انجام دے گا اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو ہر ایک تک پہنچا دے گا. توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی, وہ پروردگار ہے کہ جس نے دنیا میں بہت سی چھپی چیزوں کو باہر نکالا ہے. توجہ کیجیے گا, اس نے بہت سی چھپی چیزوں کو باہر نکالا ہے. جب پروردگار عالم کسی ذات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے پر آئے, روشن کرنے پر آئے, تو کوئی چیز سے روک نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک گیہوں کا چھوٹا سا دانہ جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, بہت ہلکا ہوتا ہے, بہت خفیف ہوتا ہے, اس کا وزن بہت زیادہ نہیں ہوتا, ایک پھونک سے ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتا ہے. اس میں کوئی طاقت نہیں ہے, اس میں کوئی وزن نہیں ہے, یہ بہت گہرا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ قادر مطلق, اتنا مطلق ذات اتنی قدرت رکھتا ہے کہ یہی وہ دانہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اب اس کو جب کاشتکار زمین ہموار کرتا ہے اور اس کو زمین کے حوالے کرنا چاہتا ہے تو کچھ قانون ہے. اگر اس دانے کو درخت بننا ہے تو درخت بننے کے لیے قانون ہے. قانون یہ ہے کہ یہ درخت جب بنے گا جب یہ مٹی کے تنوں, مٹی کے نیچے دفن ہو جائے اور اپنے وجود کو کھو دے. جب یہ اپنے وجود کو کھو دے گا تب یہ زمین کے سینے کو پھاڑ کر کے اللہ کی قدرت کے تحت باہر آئے گا. عزیزان گرامی, وہ چھوٹا سا دانہ جو ابھی پھونکوں سے ادھر سے ادھر جا رہا تھا, لیکن جب اللہ کے قانون کے مطابق اس نے عمل کر کے تنوں مٹی کے نیچے اپنے آپ کو چھپا دیا, اپنے وجود کو فنا فی اللہ کر دیا, ذات پروردگار میں اس نے اپنے آپ کو ڈھانک لیا, تو وہی پروردگار اس کو اتنی طاقت دے دے. اب زمین کے سینے کو پھاڑ کے نکلا, اب لاکھ طوفان چلتے رہے, لاکھ آندھیاں آتی رہے, اس کے تنے کو ہلا نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کرتا ہے تو اس کو اللہ دنیا کے سامنے واضح کر دیتا ہے. آج عزیزان گرامی, کل بنی امیہ کی حکومتیں چاہ رہی تھی کہ تذکرہ حسین مٹ جائے, ذکر حسین ختم ہو جائے, لیکن ذات پروردگار پر حسین نے بھروسہ کر کے کربلا کے تپتے صحرا میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذات کو فنا
फी अल्लाह किया था तो अल्लाह ने कहा हुसैन हमने तुमसे वादा किया, तुमने आज असरे आशूर मेरे सजदे को मरने नहीं दिया, हम तुम्हारे तस्करे को मरने नहीं देंगे। हुसैन हम दुनिया के कोने कोने तक तुम्हारे तस्करे को पहुंचाएंगे। हुकूमतें आती रही, मिटती रही, सल्तनतें आती रही, तबाह होती रही, लोग आते रहे, जाते रहे, तस्करे हुसैन कल भी था, आज भी है और कयामत तक रहेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी, और कुर्बानी इस कदर मुखलिस कुर्बानी थी, इस कदर खालिस कुर्बानी थी, ऐसे कीमती गौहरों को लेकर के आए थे, ऐसे कीमती गौहरों को लेकर के आए थे जिनकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती, जो सिर्फ इमाम हुसैन की जात पर कुर्बान होने आए थे। ना उनको शोहरत दरकार थी, ना उनको इज्जत दरकार थी, ना उनको किसी किस्म की लालच दरकार थी, कुछ नहीं चाहते थे। अगर लालच होती तो इमाम हुसैन कल यही तो कह रहे थे, हमने चिराग बुझा दिया, जाओ जाना चाहते हो चले जाओ, अगर तुम्हारे खेत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे बाल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी औरतें तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जात के मुंतज़िर हैं, चले जाओ। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी जो अपने रहबर को पहचान लेता है वो हर चीज को अपने रहबर पर निछावर कर देता है। इसी का नाम मवद्दत है। मवद्दत का मतलब ये नहीं है कि तमाम चीजों को मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया जाए, ये नहीं। मवद्दत का मतलब है कि जिस पर मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जाए। अल्लाह ने जो कुरान मजीद में मवद्दत का मुतालबा किया है वो इसलिए कि तुम्हारे नजदीक जो महबूब शय हो, जिसको तुम सबसे ज्यादा दोस्त रखते हो उसे कुर्बान कर दो, जिसको सबसे ज्यादा महबूब रखते हो उसको हुसैन की जात पर कुर्बान कर देने का नाम मवद्दत है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गरज परवरदिगार आलम ने कहा मेरे नबी ये तुमने जो कारनामा किया, इसको सोने का बर्तन को छुपाया, ये कुछ और नहीं है, ये तुम्हारे अमाल हैं, इनको तुम छुपाओ, हमारा काम है हम दुनिया के सामने उजागर करेंगे। तुम्हारा काम है कि मख्फी तौर पर इबादत करो। मख्फी तौर से इबादत में सबसे बड़ी इबादत क्या है? सबसे बड़ी इबादत सलातुल लैल, नमाज शब। ये एक ऐसी इबादत है कि जिसमें अल्लाह ने अपने बंदे को बुलाया है रात की तारीकी में। वाजिब नहीं है लेकिन सुन्नत मुअक्कदा जरूर है। इस कदर ताकीद की गई है कि जो शख्स नमाज शब के लिए खड़ा होता है, खुदावंदे आलम अल्लाह की खुदावंदे आलम अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र करता है, देखो जब दुनिया इस तरह पर आराम कर रही है, ये मेरा महबूब बंदा मेरी जात के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए, मेरी रजा के लिए जाग रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम की खिदमत में शख्स आया और उसने कहा मेरे मौला हमने तो बड़ी दिन तक नमाज शब पढ़ी है, हम अल्लाह की बारगाह में इबादत करते रहे, हमने किसी को भी, तवज्जो चाहता हूं, हमने किसी को भी आज तक अपने नमाज शब का तस्करा नहीं किया, नहीं बताया। तो इमाम ने कहा जा फिर आज अपनी नमाज शब का समरा देख ले। तवज्जो चाहता हूं, यानी आप गौर फरमाए कि खुदा बंदे आलम ने यह वादा कर रखा है कि नेकियां तुम करोगे, उजागर हम करेंगे, अमाल तुम करोगे, शोहरत हम अता करेंगे, तुम हमारी बारगाह में कुर्बानी दोगे, इज्जत हम अता करेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, नमाज शब के लिए है कि अगर 40 दिन तक बगैर नागा, बगैर बिला नागा अगर कोई नमाज शब को पढ़ ले तो खुदा बंदे आलम पानी के अंदर मोहब्बत को डाल देता है। जितने मोमिनीन पानी पीते हैं वो उसकी मोहब्बत उसके दिल में चली जाती है। इसकी बेहतरीन मिसाल ये दी गई है कि जब मोमिन मोमिन से मिलता है तो कभी ऐसा होता है कि कहता है भाई मैंने तुमको कहीं देखा है, जबकि उसने देखा नहीं होता। यह उस ईमानी रिश्ते का जो लगाव है वो उसको उकसाता है कि तुम कोई और नहीं हमारे रकीब खास हो, तुम कोई और नहीं हमारे खास रकीब हो।
अज़ीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम ने कहा कि हम हर नेकी की जगह तुम्हें दे देंगे, हर नेकी की का बदला तुम्हें तुम सारे अमल से बेहतर दे देंगे। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार मैंने इतने सजदे कर लिए, मैंने तेरी इबादत की है, रात की तारीकी में जा करके मैंने तेरी इबादत की है और नमाज शब को पढ़ा है, मेरा सिला तो दिखा दे, मेरी उजरत तो दिखा दे, मेरी जजा तो दिखा दे। परवरदिगार आलम ने कहा तू अपनी जजा देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है? कहा परवरदिगार मैं देखना ये चाहता हूं कि जिसके आस्थाने पर हमने सांस ली है और जिसके आस्थाने पर जिंदगी गुजारी है, हमारी नमाज शब के सिला के जरिए से हमको उस आस्थाने पर बाकी रखने का वो उरूज अता कर दे, ताकि मुझे फख्र हो कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं किसी अहले गैरे का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये इलाही नुमाइंदों का प्लेटफॉर्म है, इलाही नुमाइंदों की मसरत है। आवाज़ कुदरत आई तो निकल बाहर, आज जो बाहर निकला का आसमान की जानिब पलट करके देख, इस बंदे ने, गुनहगार बंदे ने इमाम के कहने के मुताबिक नमाज शब की सलाह मांगी है। अब जो नमाज शब की सलाह अल्लाह ने उसको दिखाई तो इस बंदे ने कहा खुदा की कसम, कायनात का जर्रा जर्रा बोल रहा था और मैं हर एक जर्रे की आवाज को सुन रहा था। मैं सिर्फ सुन नहीं रहा था बल्कि समझ भी रहा था। मोमिन की एक अलामत यह भी है कि मोमिन जब अल्लाह से करीब हो जाता है तो हर नुत्के ज़ीरू की आवाज को सुनता भी है, समझता भी है। उसने कहा खुदा की कसम, मेरी खुशी की इंतहा न रही जब तमाम जर्रे बोल रहे थे और हम आवाज को सुन के खुश हो रहे थे। मैंने एक ही आवाज सुनी, कायनात का हर जर्रा, दरिया में समंदर में मछलियां बोल रही थी, फिजा में परिंदे बोल रहे थे, कायनात में जर्रे बोल रहे थे, वो एक ही आवाज आ रही थी, बेअलीयिन 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 बेअलीयिन। और उसके बाद जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो कुंडियां हिल रही थी, हर कुंडी से, हर दरवाजे के लोहे से आवाज आ रही थी, बेअलीयिन बेअलीयिन बेअली। अज़ीज़ान गिरामी, आपने महसूस किया कि ये परवरदिगार आलम के उसकी बारगाह में अमल करने की जगह क्या है। इस बंदे को खुश कर दिया परवरदिगार, तुम्हारा काम है नेकियां करना, उजागर करने की जिम्मेदारी हमारी। हम क्यों किसी से अपनी नेकी बयान करें? हमने अगर अल्लाह के लिए किया है तो जज़ा तो देने वाला वो है, नेकियों को सजाने वाला तो वो है, हर चीज का बदला और बेहतर बदला अता करेगा उन तमाम मोमिनीन को जिन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो पहला अमल क्या था? पहला अमल यह है कि मेरे बंदे अपनी नेकियों को छुपाओ जैसे तुमने सोने के बर्तन को छुपाया। दूसरा क्या है? जिसको खाने का हुक्म था मैंने खा लिया, बड़ा शेरी फल था। अल्लाह के नबी ने पूछा परवरदिगार इसमें क्या हिकमत है? क्या इसमें हिकमत यह है, तवज्जो, इसमें हिकमत यह है कि जब तुमने पहली मर्तबा देखा तो वसी और अरीस बहाव देखा और तुम घबराए कि इसको कैसे खाएं। हमने तुमसे कहा तहम्मुल करो, बर्दाश्त करो, सब्र करो, और जब तुम करीब हुए तो एक शीरी फल के मानिंद है। खुदा हम सबको तौफीक दे इस बात पर अमल करने की का शीरी फल के मानिंद। परवरदिगार ये क्या है? क्या ये तुम्हारा गुस्सा है? तुम्हारा गुस्सा है। जब तुम गुस्से में आते हो तो चीज बेनतीजा दिखाई देती है और बहुत हैकल नजर आती है, लेकिन जब गुस्से पर कंट्रोल करते हो, तहम्मुल करते हो, बर्दाश्त करते हो, सब्र करते हो, तो सब्र के बाद जो नतीजा जाहिर होता है इसी शीरी फल की मानिंद नजर आता है। लिहाजा जब तुम्हें गुस्सा आ जाए तो जिस हालत में हो उस हालत को तब्दील कर दो। अगर खड़े रहने पर गुस्सा आया है तो बैठ जाना चाहिए, अगर बैठे पर गुस्सा आया है तो खड़े हो जाना चाहिए। और बेहतरीन चीज है, सातवें इमाम ने फरमाया हर गुस्सा आने वाले शख्स को बावजू होना चाहिए, इसलिए कि गुस्सा शैतान की अलामत है और शैतान की पैदाइश आग से हुई है और वजू अल्लाह की तरफ से हुक्म परवरदिगार है, रहमान की अलामत है। और वजू पानी से होता है, पानी आग की जिद करार दिया गया है। लिहाजा जब तुम्हें गुस्सा आए या तो पानी पी लो या वजू कर लो ताकि तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल हो जाए। और जब तुम गुस्से पर कंट्रोल होगा और उसके बाद जो नतीजा जाहिर होगा तो उसी समर की मानिंद और शीरी फल के मानिंद होगा जो हमने अपने नबी को खिलाया है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे महबूब तीसरी चीज क्या है? का तीसरी चीज यह है कि
वो जिससे हमने तुमको फरार अख्तियार करने के लिए कहा कि निकल जाओ और दूर चले जाओ, वो गीबत है। जैसे है मेरे नबी, तुमने बदबूदार जनाजे को छोड़ा है, दूर चले गए, ऐसे ही तुम जरूरी है कि तुम उसको छोड़ करके जहां गीबत हो रही हो, इसी तरीके से बदबूदार जनाजे से जो तुम जैसे तुमने इज्तनाब किया है, ऐसे ही गीबत से इज्तनाब करो। इमाम से पूछा गया गीबत रोकने का तरीका क्या है? इमाम ने फरमाया गीबत रोकने का तरीका यह है कि जब गीबत शुरू हो रही हो, अचानक एक ऐसा ये अजीब और गरीब गुनाह है, इतना लजीज गुनाह है कि हर इंसान लज्जत के साथ इसको अंजाम देता है और मुतवज्जे भी नहीं हो पाता, जबकि अल-गीबत अशद्द मिन ज़िना, गीबत ज़िना से भी ज्यादा बदतर गुनाह है। अज़ीज़ान गिरामी, रवायत के जुमले हैं कि जिस घर में गीबत होती है घर तबाह हो जाता है, जिस दुकान पे गीबत होती है दुकान तबाह हो जाती है। पैगंबर से कहा कि गीबत से ऐसे बचो जैसे बदबूदार जनाजे से, और गीबत से बचने का तरीका यह है कि अगर हम इज्तिमा में बैठे हों तो वहां पर जैसी गीबत शुरू हो, आले मोहम्मद पर सलवात पढ़ने लगो, गीबत खुद ही रुक जाएगी। ये इमाम के जुमले, तुम सलवात पढ़ा करो, उलमा का तरीका है, तुम सलवात कसरत से पढ़ो, जहां गीबत शुरू हुई है खुद ब खुद मौजू बदल जाएगा और लोग उधर से मुनहरिफ हो जाएंगे और उधर से गीबत की तरफ से उनका रुख बदल जाएगा। लिहाजा जरूरी है कि जैसे गीबत शुरू हो और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर सलवात पढ़ो। इसीलिए पैगंबर ने बहुत साल पहले ये नुस्खा बता दिया, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, तुम अपने मजलिस को अली के जिक्र से ज़ीनत दो ताकि तुम्हारी इब्तिदा भी पाक हो जाए, इंतहा भी पाक हो जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तुम अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से ज़ीनत दो। ये जिक्र वही है कि अगर तुम सलवात पढ़ोगे, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का तस्करा करोगे तो खुद ब खुद तुम्हारी बज़्म पाकीज़ा हो जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो कारनामे हैं जिसकी तरफ अल्लाह ने हमको दावत दी है, और इन कारनामों की जगह जो दुनिया में अल्लाह ने हमको दी है, और जिन बंदों के अमाल को कबूल करके अल्लाह ने दुनिया में इस विलायत का समरा जाहिर किया है, वो ये समरा है। इसलिए हम जिससे जुड़े हुए हैं और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जो रिश्ता जोड़ा है, जो राबिता जोड़ा है, वो रिश्ता इतना मोहकम और मजबूत रिश्ता है कि इससे बेहतर रिश्ता दुनिया में नहीं पाया गया। हर नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पा लेती है अगर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के आस्ताने से गुजर के गई है। लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि हम मजलिसों में आते हैं, हम जो जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते हैं, यूं ही नहीं कर रहे हैं। ये तज़िये वक्त नहीं है कि हमने वक्त जाया कर दिया, जी नहीं, अपनी जिंदगी के वो कीमती वक्त को हमने महफूज कर दिया कि ये एक रात न जाने कितनी मशक्कत भरी रातों से हमको बचा लेगी। ये एक घंटे की मजलिस मैदान महशर की धूप से बचा लेगी। इसलिए कि इमाम रज़ा ने फरमाया कि जो लोग हमारी मजलिसों में शिरकत करते हैं और हमारे अवामीर को जिंदा रखते हैं, उस दिन जिस दिन तमाम लोगों के कल्ब मुर्दा होंगे, उनके दिल जिंदा होंगे। लिहाजा इनके जिक्र से और इनके तस्करे से अपनी मजलिसों को, अपने घरों को ज़ीनत दो। अगर बच्चों के दरमियान बैठो तो इनके वाकयात सुनाओ, और बच्चों के दरमियान बैठो इनके वाकयात सुनाओ, इनके हदीसों को सुनाओ, ताकि इनके कलेजों में मासूमीन के अकवाल उतर जाएं। और जब मासूमीन के अकवाल के खैमे लगे होंगे तो वहां पर शैतान भी पर नहीं मारता। इसलिए कि इमाम ने फरमाया कि जिसके घर में नाम मोहम्मद नाम अली मौजूद हो वहां शैतान का गुजर नहीं होता। तो जिसके दिल में कौले अली मौजूद हो, कौले मोहम्मद मौजूद हो, उसको कौन बहका सकता है। लिहाजा कसरत से जिक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वजह अज़ीज़ान गिरामी, और हम तो इसीलिए पैदा ही किए गए हैं कि हमारी इब्तिदा भी अहले बैत, हमारी इंतहा भी अहले बैत अलैहिस्सलाम। जिंदगी हो तो अहले बैत अलैहिस्सलाम पर। अज़ीज़ान गिरामी, हम उसको समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी और मसलक में तलाश करने की जरूरत नहीं है। करबला वालों का तस्करा जिंदगी समझने के लिए काफी है। हर रिश्ता करबला में मौजूद है, हर रुख करबला में मौजूद है। जिंदगी समझने के लिए करबला से बेहतर किताब नहीं लिखी गई है।
اس کتاب کا مصنف معصوم مصنف ہے، جس نے ہر باب بنائے ہیں، ہر رشتے پر سے حاصل بحث کی ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کربلا سے جوڑ دو۔ عزیزان گرامی، آج 2 محرم ہے، ہمارے یہاں بھی یتیم ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تاکید جو ہوئی ہے یتیموں کو دیکھنے کی تاکید کی ہے، ان کے سروں پر دست شفقت پھیرو، مشیت خوش ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایک یتیم کی کفالت کرتا ہے تو خداوند عالم نے کہا ایک کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک امت کو زندہ کر دیا، ایک کو سہارا دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے امت کا سہارا دیا۔ اگر کوئی یتیم محلے میں ہو تو لاوارث نہ رہنے دیجیے گا، اس لیے کہ بہت جلدی اور سنت کے ساتھ ہی عمل قبول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر یتیم کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے دعا نکلتی ہے، اور اللہ نے کہا تمہیں مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ٹوٹے ہوئے دل کے پاس مجھے پاؤ گے۔ یتیم کا دل ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے۔ ایسے ہی 2 محرم کو ہم 2 یتیموں کا تذکرہ کریں گے۔ آپ محسوس کریں کہ مقدمے کربلا میں 2 یتیموں کا تذکرہ ہے۔ وہ یتیم کون ہے آپ سنیں گے۔ نہ ماں ہے سہارے کے لیے اور باپ قتل کیا جا چکا ہے۔ وہ 2 یتیم جناب مسلم کے 2 نونہال ہیں۔ جناب مسلم کی شہادت واقع ہو گئی ہے اور یہ دونوں شہزادے قید خانے میں ہیں۔ کوفے کی گلیاں ہیں، جناب مسلم کے دونوں شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزو، غربت بھری زندگی ہے۔ ایک تو عالم پردیس ہے، عالم غربت ہے، وہاں پر کوئی جانے والا نہیں ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، ہر ایک گلی سے آشنا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں بھائی قید خانے میں ہیں۔ ایک دن چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا اس مختصر سے کھانے پر زندگی تو ختم ہو جائے گی، کچھ ایسی تدبیر کرو کہ ہم یہاں سے آزاد ہو جائیں۔ ان باتوں کو مرتبہ داروغہ زندان میں سنا۔ جب داروغہ زندان نے سنا تو مرتبہ آواز دی، آخر یہ بتاؤ کہ تم کون ہو جو اتنے خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ تم کسی شریف گھرانے کے معلوم ہوتے ہو۔ ایک مرتبہ